بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں نوزی وائس کے ساتھ ناول افطار ایپیسوڈ 6۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کہانی پسند آئے لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے مدراس چنائی کی بندرگاہ کے ہوٹل میں کمرہ لیا ہوا تھا۔ میں یہاں جس مہم کو سر کرنے کے لیے آیا تھا وہ نہ صرف بے حد پراسرار، بے حد اہم اور خطرناک بھی تھی۔ مہم کوئی سی بھی ہو، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ مہم میرے علاوہ شاید ہی کوئی اور انجام دے سکتا، کیونکہ ایک تو میں ایسی پوشیدہ صلاحیت کا مالک تھا جس سے مقابل کا ذہن پڑھ کر اس کے ارادوں اور عزائم سے پل بھر میں واقف ہو جاتا تھا۔ یہ ایک راز تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کا ماہر ہوں۔ اسے میں نے صرف اپنی ذات تک محدود کر رکھا تھا، اس لیے میں جس مہم پر نکلتا اور کام میں ہاتھ ڈالتا، کامیابی میرے قدم چومتی تھی۔ لیکن صرف اس صلاحیت سے کام نہیں چلتا ہے، میں اور بھی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ میں نے زیر زمین کمانڈوز کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی کئی کاموں میں باصلاحیت اور ماہر تھا۔ ایک پرائیویٹ جاسوس کو سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ سے کم نہ تھا، اس لیے خطرناک مہمیں میرے سپرد کی جاتی تھی۔ مجھے اس کا جو معاوضہ ملتا وہ میں وصول کرتا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ میں نڈر اور بہادر بھی تھا، ہر فن مولا تھا، کون سا ایسا کام تھا جو مجھے نہیں آتا تھا۔ میں جیب تراشی کے فن میں ماہر تھا، اور پورے بمبئی شہر میں شاید ہی کوئی ہو، میں استادوں کا استاد تھا۔ مدراس، جس کا نام بدل کر چنائی رکھ دیا تھا، اس کا شمار نہ صرف ہندوستان کے بڑے شہروں میں بلکہ دنیا کے بھی بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس شہر کو انگریزوں نے بڑی ترقی دی تھی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد اس صوبے نے جو ترقی کی تھی وہ مثالی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی بندرگاہ بہت قدیم اور بڑی بھی تھی، ساری دنیا سے یہاں جہاز آتے رہتے تھے۔ تامل ناڈو صوبے کا یہ شہر چنائی میرے لیے اجنبی نہیں تھا، میں اس سے پہلے بھی آ چکا تھا اور آتا رہتا تھا۔ چونکہ ابھی اس مہم کے آغاز میں کچھ دنوں کی دیر کسی وجہ سے تھی، اس لیے میرے پاس وقت ہی وقت تھا۔ سب سے زیادہ مشکل اکیلے شخص کا وقت کاٹنا ہوتا ہے۔ میں ایک ایسا شخص تھا جو نچلا نہیں بیٹھ سکتا تھا، مجبوری تھی میں کسی نہ کسی طرح وقت گزاری کروں۔ یوں تو وقت گزاری کے لیے تفریح طبع کا بہت سامان تھا، لیکن میں ابھی ان مقامات پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ وقت گزاری کے لیے کیا کروں۔ میرے سامنے پیراکی کا تالاب تھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد میں وہاں پر چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی، درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے دل کو مضبوط اور اس کی ہر کارروائی کے لیے ذہن کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ ہوا میں خنکی سی تھی، پھر بھی میری پیشانی عرق آلود تھی۔ ہیلو، اس نے میرے پاس آ کر رسیلی آواز میں مخاطب کیا تو مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ میں نے بھی اس کے جواب میں ہیلو کہہ دیا۔ کیا آپ بیٹھنا پسند کریں گے؟ میں نے رسمی انداز سے کہا۔ میں اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتا تھا، اس لیے یہ کہنا پڑا۔ مجھے اس بات کی 1% توقع بھی نہیں تھی کہ وہ میری دعوت قبول کر لے گی۔ ہمارے درمیان سکوت کی دیوار کھڑی تھی۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے رسمی انداز سے پوچھا، تمہارا یہاں آنا کس کام کے سلسلے میں ہے یا پھر تفریحی مقصود ہے؟ میری ضدی نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ ارادہ تو سیر و تفریح کا ہی ہے۔ تم یہاں کیسے آئے؟ ہوائی جہاز سے، میں نے شوخی سے کہا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ مجھ جیسے آوارہ گرد کے لیے یہ شہر تفریح کے لیے موزوں معلوم ہوا تو میں چلا آیا۔ پھر اس شہر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان دنوں اس کا موسم معتدل رہتا ہے۔ میری بات سن کر اس کی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں میں گہری سوچ بھر گئی۔ اس کی اور میرے درمیان خاموشی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ میں نے چند لمحوں کے بعد سکوت کو توڑتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی اسی ہوٹل سیرینا میں ٹھہری ہوئی ہو؟ نہیں، میں اس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی نہیں، شاید تم اس میں مقیم ہو۔ پھر تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ میں نے متعجب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں صرف آج نہیں آئی بلکہ روز ہی اپنے شوہر سے ملنے آتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک طرح سے میری ڈیوٹی ہے۔ کیا تمہارا شوہر ساتھ نہیں رہتا جو تم اس سے ملنے روز یہاں آتی ہو؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں؟ ساتھ تو رہتا ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ بہت مصروف رہتا ہے اور کسی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں اپنی تنہائی اور بوریت دور کرنے اور خوش و خرم رہنے کے لیے یہاں اکیلی تفریح کرنے آ جاتی ہوں۔ یہاں آ کر دن کا بڑا حصہ بہت اچھی طرح گزر جاتا ہے۔ دیوا، میں اپنے دل پر بڑے زور سے چونکا۔ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ جبکہ میں آج اسے ابھی اور اسی وقت پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔
अगर मैंने इसे 10 वर्ष पहले देखा होता तो शायद मैं इसे भूल ना सकता। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम मुझे कैसे जानती हो? मेरी तुमसे आज से पहले कहीं भी मतभेड़ नहीं हुई। उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट उभर आई। उसने मुझे तीखी तीखी नज़रों से देखा। मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम्हें वैसा ही पाया। वाकई तुम्हें बेहद दिलचस्प और जिंदा दिल शख्स हो, लेकिन तुम अपनी शक्ल और सूरत से गौ माता मालूम होते हो। वो तौक़ुफ़ करके अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर चुभते हुए लहजे में बोली, तुमसे एक सौदा तय करना चाहती हूँ। सौदा? तुम मुझसे क्या सौदा करना चाहती हो? मैंने इसे सवालिया नज़रों से देखा। मैं सौदागर नहीं बल्कि सुराग रसा हूँ। पहले तुम मुझे खुलकर बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, तुम्हें किसने बताया? जब तक तुम ये नहीं बताओगी इस वक्त तक बात नहीं बढ़ सकती, ना ही बढ़ेगी, मैंने सर्द और सपाट लहजे में कहा। मैं जानती हूँ कि तुम क्या हो, उसने जवाब दिया। मुझे हर कीमत पर तुम्हारी खिदमत दरकार हैं। कल शाम मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ, यानी मैंने तुम्हें देखा था। यूँ तो मैंने दो एक से तुम्हारी तारीफ और कारनामे सुने हैं, लेकिन तुमने गौतम और शांति का केस जिस तरह से हल किया इस पर मीडिया और पुलिस ने बड़ी वाह वाह की। अखबारात में तुम्हारी तस्वीरें भी छपी थीं, लेकिन तुम्हारी तस्वीर दिल पर नक्श न थी। लेकिन कल शाम तुम्हारी तस्वीर दिल पर इस तरह नक्श हुई कि मेरा शोहर तुम्हारी तस्वीर देखकर बड़े ज़ोर से चौंका था। दूसरे लम्हे इसका चेहरा मुतगैर हो गया था। मैं इसकी इस कैफियत पर दिल में बड़ी हैरान हुई। वो शख्स दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। उसने खुद ही तुम्हारी तरफ इशारा करके कहा, ये देवा कुमार है, जिसके कारनामों ने धूम मचाई हुई है। ये ना सिर्फ बड़ा ज़हीन और बहादुर है बल्कि पुरस्कार और बेहद ख़तरनाक भी। उसने ऐसे ऐसे केस हल किए हैं कि शर्लॉक होम्स भी होता तो ना कर पाता। मगर ये मरदूद चेन्नई में क्या कर रहा है? उसके यही अल्फाज थे। वो तुम्हें देखकर बहुत परेशान हो गया था। उसकी तशवीश मेरी समझ से बालातर थी। जराइम पेशा अफराद के मेरे बारे में इसी किस्म के रिमार्क्स होते हैं, मैंने बेपरवाही से कहा। इससे मेरी सेहत, मेरे काम, मेरी शोहरत और कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा तो तुम ये बताओ, तुम मेरी खिदमत क्यों और किस लिए हासिल करना चाहती हो? बाय द वे, मुझे तुम्हारी कोई सी भी खिदमत करके दिली मुसरत होगी। मैं अपने खबीस, जलील और जालिम शोहर से सदा के लिए निजात हासिल करना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। इतनी सी बात है? इस काम के लिए तुम्हें मेरी खिदमत की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा। तुम किसी दिन मौका पाकर किसी भी दूर दराज शहर की तरफ चली जाओ। मुझ में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं, वो खौफजदा लहजे में बोली, क्योंकि मैं धर ली गई तो वो मुझे मौत के घाट उतार देगा। तुमने अपना तारुफ नहीं कराया, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? कहीं तुम बेनाम तो नहीं? वो एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा नाम सरिता है। सुनो सरिता, मैंने संजीदगी से कहा, मैं यहाँ सैर व तफरीह के लिए आया हूँ। मैं किसी ऐसी औरत का केस लेने के लिए तैयार नहीं जो शोहर से नाराज़ हो। तुम इसे नाराज़गी का नाम ना दो। मैं उससे सख्त नफ़रत करती हूँ। मैं उससे किस कदर नाराज़ हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। इस शदीद नफ़रत की वजह ये तो नहीं कि वो तुम्हारे हुस्न शबाब से फ़ायदा उठाता और घरौने मकासद के लिए अलाकार बनाना चाहता हो। चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहकर मेरे बॉडीगार्ड के फ़राइज़ अंजाम दो, ताकि मैं किस दिन मौका पाकर हिंदुस्तान से बाहर निकल जाऊँ, उसके हाथ ना आऊँ। दरअसल तुम वहम का शिकार हो गई हो, मैंने कहा। तुम्हें मेरी हिफाजत की कतई ज़रूरत नहीं। फिर मैं किसी किस्म का कोई केस लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि मेरी सारी तफरीह और छुट्टियाँ इसकी नज़र हो जाएंगी, खाक में मिल जाएंगी। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या अपनी तफरीह को यूं गारत करती? वो कुछ कहते कहते एकदम से रुक गई। उसका चेहरा फाक सा हो गया। उसकी मेरी पुश्त पर किसी को देखने से ये कैफियत हुई थी। सरिता ने इसी सिमत देखते हुए खुद पर फौरन ही काबू पा लिया, लेकिन उसकी आवाज़ हल्का सा इर्तवाज था। हेलो अजीत, आज तुमने बहुत देर कर दी। मैंने गर्दन घुमा कर देखा। एक खूबसूरत, वजी और तनुमंद मर्द खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। उसकी शख्सियत जाज़िब नज़र और बड़ी पुरकशिश थी। सरिता दूसरे लम्हे उठ खड़ी हुई। मैंने भी पहल की। फिर सरिता ने तारफी रस्म अदा की। अजीत, इनसे मिलो, ये मिस्टर देवा कुमार हैं। हेलो मिस्टर अजीत। मैंने दोस्ताना अंदाज से उसकी तरफ मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। उसने नज़रअंदाज किया तो मुझे खिफ़त भी हुई। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि वह बज़ाहिर जितना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से इतना ही बदसूरत और मकरूह और खबीस किस्म का है। मैंने महज सरिता की वजह से इसकी बदअखलाक़ी को बर्दाश्त किया था, वरना मुझे भी किसी को नादम करना आता था। अच्छा तो तुम वही कोड़ मगज़ और अहमक सुराग रसां हो, इसने तमस्खुर से कहा, जिसका दफ्तर बम्बई शहर में है, जो दफ्तर में मक्खियाँ मारता है। मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं सिर्फ देवा कुमार हूँ और इस हैसियत से तुमसे मिल रहा हूँ, मैंने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं सुराग रसां हूँ।
मैंने सख्त लहजे में इसलिए इसकी बात का जवाब दिया कि इसका रवैया तौहीन आमेज़ और गैर शरीफाना था। मुझे इससे डरने की बात भी नहीं थी। ऐसे अबाश किस्म के लोगों से इनके लहजे में बात की जाए तो इनके मिजाज दुरुस्त हो जाते हैं, वरना और फैल जाते हैं। मेरा ख्याल था कि मेरे लहजे का शदीद रद्द अमल होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि हमारे दरमियान चंद लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। चंद लम्हों के बाद उसके चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट खेलने लगी, जिससे अंदाज़ा होता था कि इसके तेवर अच्छे नहीं। मेरे लहजे ने इसे अंदर ही अंदर सड़ा दिया है। उसे एक तरह से शायद अपनी तौहीन का एहसास हुआ था, तजलील सी महसूस की थी। एक तरह से उसकी तबीयत भी साफ़ हो गई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि किससे पाला पड़ा है। वो अपनी हैसियत और नदामत मिटाना चाहता था। फिर अपनी बतीसी के इस्तेहज़ाई अंदाज से नुमाइश करने लगा। मैंने अपना गुस्सा ज़ब्त करके ख़ुद पर काबू पाया हुआ था, वरना मैं इसकी बतीसी निकाल कर इसकी हथेली पर रख देता। जी में आया कि एक घूंसा इसके मुंह पर मारकर दो एक हाथ निकाल दूं। सोच ही रहा था कि इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर, मुझे तुम जैसों की हर वक्त तलाश रहती है। तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने इससे हाथ मिलाया तो वो मुझ पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगा। उसका हाथ मिलाने का मकसद भी यही था। अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली थी मेरे हाथ पर। मेरी उंगलियों को पोरों समेत दबाने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बड़ी ताकत थी। मेरी जगह कोई और सबूताज चीख पड़ता और बुरी तरह कराहने लग जाता, लेकिन मुझ पर कोई असर ना हो रहा था। उसे क्या मालूम था कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर मेरे हाथ से ट्रक भी गुजर जाए तो मुझ पर कोई असर ना होगा। ताहम मैंने चेहरे से ये तासुर दिया कि मेरी उंगलियां चटक रहीं और दर्द की लहरें उठ रही हैं। मैं ताब न ला रहा हूँ। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर बहुत खुश हो रहा था। ये क्या हमाकत है, मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। मेरा हाथ छोड़ दो। तुम्हारी इस मोहब्बत और इस कदर बेपनाह गर्मजोशी की ज़रूरत नहीं। उसने मेरा हाथ छोड़ने के बजाय अपनी पूरी ताकत जमा करके मेरी उंगलियों को दबाना शुरू किया। ये किसी लड़की की मखरूती उंगलियां नहीं थी, न लैला की। मैंने इसे चंद लम्हों तक मौका दिया कि वो मेरी उंगलियों का हशर नशर करने की आरजू रखता है तो वो पूरी कर ले। चंद लम्हों के बाद मेरे लिए अब इसके सिवा कोई चारा न रहा था कि मैं भी खम ठोंक कर मैदान में उतर आऊँ, ये तमाशा ख़त्म कर दूँ। मैंने दिल में तहिया कर लिया था कि इसे ऐसा सबक दूँ कि सारी ज़िंदगी ना सही 2-1 बरस तक तो याद रखे। मैंने बर्क सूरत से उसके बगल में अपना सर देखकर उसे चारों शाने चित कर दिया। मैंने ऐसा ही किया। फिर उसे संभलने उठने नहीं दिया। फिर उसके एक हाथ की कलाई को पकड़कर बल देना शुरू किया। जब उसे खड़ा कर दिया तो वो कराह रहा था। फिर मैंने किसी ताखीर के बगैर इसकी कमर पर एक लात रसीद की। इसने बहुत कोशिश की कि अपना तवाज़ुन कायम रखे, लेकिन वो नाकाम रहा। वो लड़खड़ाता हुआ तैराकी के तालाब में जा गिरा। अजीत पानी से मुंह निकाल कर मेरी शान में कसीदे पढ़ने लगा। अगर तुमने पानी में अपनी चोंच बंद नहीं की तो मैं तालाब में उतर कर तुम्हारे चेहरे का जोग्राफिया ऐसा बदल दूंगा कि तुम पहचान ना सकोगे। उसने मेरी धमकी का कोई असर ना लिया। फिर वो वहाँ से हटकर ऐसी जगह खड़ा हो गया कि जहाँ औरतें तालाब में पाँव लटकाए हुए बैठी थीं। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता था, क्योंकि तफरीही जगह थी, कोई उखाड़ा नहीं था कि दंगल किया जाए। चंद लम्हों बाद वो तालाब से किसी न किस तरह निकल आया। फिर इसने बाएं हाथ से दाएं हाथ को दबाया, फिर सहलाने लगा। फिर इसने बाजू और जेब में कोई चीज़ तलाश करने लगा। शायद पिस्तौल तलाश कर रहा था, जो इस वक्त इसके पास नहीं था। जब इसने पानी में गोता खाया था तब शायद इसकी जेब से निकल गया होगा। अगर इसके पास पिस्तौल होता तब भी वो मेरा बाल तक बीका नहीं कर पाता। यहाँ पिस्तौल चलाना और तान लेना कोई हंसी खेल न था। वो मुझे धमकी देने और मरूब करने के लिए पिस्तौल दिखाना चाहता था। यूं भी इस होटल में असला लहाने की सख्त मुखालफत थी। इसकी जान मुसीबत में आ जाती है, वो इस बात को खूब जानता था। वो मेरी तरफ आने के बजाय मुझे खूनख्वार नज़रों से घूरता हुआ दूसरी सिमत चल दिया। वो बुड़बुड़ाता जा रहा था। एक फिक्रा मैं सुन सका था। बेटा, तू नहाकर कहाँ जाएगा? मैं तुझसे। चूँकि इसके और मेरे दरमियान फासला बढ़ गया था, इसलिए मज़ीद न सुन सका। वैसे उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मुझसे हाथापाई करना आसान न था। ताहम वो इस बात पर दिल में सख्त हैरान था कि मेरी उंगलियां चटकी क्यों नहीं। मैं ज़रा बराबर भी दर्द और तकलीफ़ महसूस क्यों नहीं कर रहा। कैसे मज़े में खड़ा हुआ हूँ। इसे क्या मालूम था कि मैं क्या हूँ। मैं कैसी कैसी मख्फी सलाहियतों का मालिक हूँ। अगर इसे इस बात का इल्म हो जाए तो शहर छोड़कर ही भाग जाता। जब वो कुछ फासले पर पहुंचा तो इसे कुछ लोगों ने घेर लिया। वो इसके साथी थे जो वहां खड़े हुए ये तमाशा देख रहे थे। इनमें से किसी को हिम्मत नहीं हुई कि वो इसकी मदद के लिए आते। वो अगर आते तो मैं इनका पुरतपा खैर मकदम करता। वो इनकी शान शान होता। वो अपनी वज़ाकता चेहरे मोहरों से एक नंबर गुंडे लग रहे थे। वो खुसर फुसर और मेरी तरफ इशारा करने लगे, लेकिन इससे क्या होता, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता। बात तो तब थी जब इनसे एक माई का लाल आकर मेरी तरफ आता।
یہ میرا پتی ہے اور وہ جن کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اس کے وہ خبیث جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے اس کے دوست ہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ سریتا نے اپنی بات ختم کر کے ایک گہری سانس لی۔ میں کچھ کہتا وہ اس سے پہلے افسردہ لہجے میں مجھ سے بولی، کاش میری صحت خراب نہ ہوتی دیوا، میں کسے دوش دوں، بس میں اندر ہی اندر اپنی قسمت پر روتی رہتی ہوں۔ قسمت کو دوش نہ دو اپنے آپ کو، میں اسے دلاسا دیا۔ برا وقت آتا ہے تو اچھا وقت بھی آتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب اس سے نجات مل جائے۔ اچھا تم اپنے پتی کا پورا نام بتاؤ، کیا ہے؟ گو کہ میں نے اس کے ذہن اور اجیت کے ذہن سے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا، لیکن میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ میری ہمدردانہ نظروں اور دلاسے سے بہت مطمئن ہوئی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، اجیت بھاٹیا۔ اوہ، تو یہ وہی اجیت بھاٹیا ہے؟ میں نے اس کے حسین چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے کہا، معروف بدنام زمانہ جسے مرگ ناگہانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم اس مردود کی پتنی ہو۔ واقعی تم بہت بدقسمت ہو سریتا۔ اب تمہیں واقعی یقین آ گیا نا کہ میں کتنی بدقسمت ہوں، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ کیا تم اس خبیث سے واقف ہو؟ کیسے؟ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ میں اسے کیسے جانتا ہوں؟ اس طرح اور ایسے جانتا ہوں جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے، میں نے کہا۔ اس سے ملاقات اور اسے دیکھنے کی بڑی تمنا بھی تھی۔ آج اس سے اچانک اور غیر متوقع اور حادثاتی ڈرامائی طور پر شرف ملاقات ہو گئی، جس کے بارے میں نے خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ واقعی یہ دنیا گول ہے، اس لیے تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے باڈی گارڈ بن جاؤ۔ سریتا نے اپنی لمبی لمبی پلکیں جھپکائیں۔ کیا تم تیار ہو؟ تمہاری باڈی گارڈ بننے سے پہلے ضروری ہے کہ میں اپنے لیے ایک باڈی گارڈ کا انتظام کروں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دیکھو دیوا، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ آخر تمہیں باڈی گارڈ کی کیوں اور کس لیے ضرورت پڑے گی؟ اس لیے کہ تمہارا پتی بے حد خطرناک شخص ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں جانتی ہوں لیکن بہت کچھ نہیں جانتی، وہ بولی۔ کیا تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ گے؟ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ سنا، جو کچھ جانتا ہوں اور سنا تھا وہ تمہیں سناتا ہوں۔ میں کہنے لگا، نوجوانی سے ہی اس کا شکار خون آشامی سے درندہ صفت میں ہوتا تھا۔ وہ لہو آشنا تھا۔ اس نے اپنی درندگی سفاکی اور اظہار رسانی سے جانے کتنی جانیں لیں، ان کی تعداد اسے بھی یاد نہ ہوگی۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ وہ زیر زمین دنیا میں 10 برس رہا۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جرائم کی دنیا میں اس کے مقابلے میں کوئی نشانہ باز نہیں۔ اس نے نشانہ بازی کے متعدد انعامات جیتے ہوئے ہیں، پھر اس کے جسم اور ہاتھوں میں غیر معمولی طاقت ہے۔ وہ جوان مردوں کے ہاتھوں اور انگلیوں کو اپنے ہاتھوں سے دبا کر توڑ اور چٹخا دیتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ اور انگلیوں پر بھی آزمائش کی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ میرے ہاتھ بہت مضبوط ہیں۔ وہ نہ جانے کتنوں کو ہاتھوں سے معذور کر چکا ہے، اور دوسری طرف بے حد شفاق ترین شخص ہے۔ اس میں انسانی ہمدردی کی رمق بھی نہیں۔ شاید اس نے کبھی اپنے والدین، بہن بھائیوں سے بھی ہمدردی کا برتاؤ نہیں کیا ہوگا، اور اس میں عقل کی کمی ہے۔ عقل کی کمی ہے؟ سریتا کو میری بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے کبھی ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ وہ بہت زیادہ عقل مند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے اپنے ساتھیوں سے یہی کہا، بلکہ کہتا رہتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ عقل مند شاید ہی کوئی ہو۔ یہی بات عقل میں کمی کی ہے، میں نے کہا۔ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے وہ سامنے والے کو بیوقوف، اس سے بڑا احمق کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سامنے والے کو کبھی بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ وہ ایک بے حد خطرناک شخص ہے۔ اتفاقی طور پر اس سے میرا واسطہ پڑ گیا تھا۔ اگر میں سریتا کا باڈی گارڈ بن جاتا تو میری مہم اور مشن جس کے لیے میں آیا تھا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کب اس کا آغاز ہو جائے، اس لیے میں سریتا کی پیشکش قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ مسٹر دیوا کمار، سریتا نے اپنے پتی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑی لجاجت سے کہا، آپ میرے پتی کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میری مدد بھی نہیں کریں گے، جبکہ میں ایک بے یار و مددگار عورت ہوں۔ میری مجبوری اور پریشانی آپ کے سامنے ہے۔ میں بیچ منجدار میں ہوں، حالات کے تھپیڑے کی زد میں ہوں، ایک بدماش کے رحم و کرم پر ہوں۔ سریتا نے مجھے عجیب الجھن اور تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ میرے موکل کو سارا ہندوستان جانتا تھا، جس نے میرے ذمے یہ مہم سپرد کی تھی۔ میں اس کا نام ظاہر کر دوں تو لوگ جان جائیں گے اور چونکے چونک بھی جائیں گے، اس لیے اس کا نام راز میں رہنا ہی بہتر ہے۔ صرف اتنا بتا دوں کہ وہ کانگریس پارٹی کے مقبول اور معروف ترین لیڈروں میں سے ایک ہے۔ میں حیران تھا کہ اس لیڈر کا کردار کیسا ہے۔ اس کی اصلیت سے لوگ بے خبر تھے۔ میں سریتا کو نہ تو بتانا چاہتا تھا، نہ ہی اعتماد میں لینا چاہتا تھا کہ میرے پاس ایک بہت ہی اہم کیس ہے، کیونکہ لا حاصل تھا اور اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ اسے دلچسپی صرف اور صرف اپنی جان اور ذات کی حفاظت سے تھی۔
मैंने इसे सिर्फ ये तासुर दिया कि दरअसल जवाहरात की चोरी के केस के सिलसिले में मैं चेन्नई आया हूँ, जिसका कोई वजूद नहीं, ये एक मनगढ़ंत है। दूसरी तरफ मैं इसे नाउम्मीद करना और इसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। मैं इसका दिल तोड़ता तो इसकी किरचियाँ इसके दिल में चुभ जाती और इनसे लहू रिसने लगता। सरिता, मैं तुमसे वादा तो नहीं करता, लेकिन इस बात की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि इस भेड़िए से निजात दिला दूं। ये सुनते ही इसका पशमुर्दा चेहरा एकदम से खिल उठा। अगर इसका पति यहाँ मौजूद ना होता तो वो मेरे गले लग जाती, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं साय की तरह हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। मैंने साफ गोई से कहा, इसका ख्याल रखना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जैसे ही मौका मिले मुझे यहाँ से निकाल दो। देर ना करो, तुम्हारा मुआवजा जो भी है वो मैं बम्बई में ही दे सकूंगी। सुनो, हम दोनों खासी देर से बातें कर रहे हैं, मैंने कहा। तुम्हारे पति को शक ना हो जाए कि हम आपस में कौन सी बातें कर रहे हैं। हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया। यूं भी वो बड़ा शक्की मिजाज है, वहमी है, जाने मेरे साथ क्या सलूक करे। अब तुम ऐसा करो कि अपने हाथों से मेरे सीने पर 2 थप्पड़ मारो और मुझे तालाब में जोर से धक्का दे दो। अजीत के जो साथी थे इनमें से बहुत सारे पेशावर बदमाश और कातिल थे। इसकी वजह ये थी कि इसका गिरोह जराइम पेशा था, इसमें शरीफ आदमी होने से रहा। उनमें से 2-1 बदमाशों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, जाके वो मुझसे नावाकिफ थे। इनमें से मुझे एक शख्स दिखाई दिया जो दुश्मन की रगों में लहू मुंजमद कर दे। वो बेहद दराज कद था, अमिताभ बच्चन से भी निकलता हुआ कद था, दिन में अपने कद और डेल डोल की वजह से नुमाया नजर आता था। उसका नाम राजा था, जिससे मेरी 2-1 मरतबा मतभेड़ हो चुकी थी। इसने मुझे जो देखा था वो दोस्ताना अंदाज से हाथ हिलाया। मेरे हाथ हिलाने पर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। आपने मुझे बताया नहीं कि मैं किस लिए आपको तालाब में जोरदार धक्का दूं, सरिता ने दरियाफ्त किया। जल्दी से बताएं। मेरा देरीना दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है, पहले इससे बात तो करूं, मैंने जवाब दिया। फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि किस लिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक राजा का कद 6 फुट से ज्यादा ही होगा। वैसे वो अपने डेल डोल की वजह से इतना लंबा दिखाई ना देता जितना था। इसका जिस्म भैंसे की तरह तनुमंद अब भी था। उसके अज़ाब बहुत मजबूत और पत्थर की तरह सख्त थे। वो चल रहा था तो ज़मीन हिल सी रही थी। तालाब पर जो लड़कियां थी इसे देखकर हंस रही थी। ओह देवा कुमार, अरे यार तुम, वो खुशदिली से बोला। इसने फौलादी पंजा मुसाफा के लिए मेरी तरफ बढ़ा दिया। देखो दोस्त, मेरे साथ अजीत वाली हरकत मत करना, मैंने कहा, क्योंकि मुझे अपने बाजुओं की अशद ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ज़ोर का कहकहा बुलंद किया, फिर हंसने लगा। हाथ मिलाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस गधे को क्या मालूम कि तुम जूडो कराटे में जो महारत रखते हो वो बहुत कम लोग रखते हैं। तुम ग्रीन, ब्लैक और ब्लू बेल्ट हासिल कर चुके हो। महाराष्ट्र में तुमने जूडो कराटे के सालाना मुकाबलों में जो हिस्सा लिया था, इसमें 2 मरतबा पहला इनाम हासिल कर चुके हो। इसके इल्म में ये बात होती तो वो तुमसे उलझता नहीं। तुमने इसके घमंड का पानी पानी कर दिया। फिर सुरीता की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसकी तरफ देख कर कहा, हेलो सुरीता, कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ राजा, सुरीता ने इस अंदाज से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बहुत दिन बाद देख रही हूँ। वो खुद ही उलझा था, मैंने कहा। मुझे अफसोस है कि मुझे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मेरे लिए इसके सिवा चारा भी नहीं था। बहुत अच्छा किया। राजा ने फिर एक कह का बम फिजा में छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ भाई, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? खैरियत तो है ना? खैरियत ही खैरियत है, मैंने जवाब दिया। मैं यहाँ तफरीह की गर्ज से आया हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करने आया हूँ। ठीक किया ना मैंने? अजीत का भी यही कहना है कि वो भी तफरीह के लिए आया है, राजा ने कहा। शायद इल्म है कि अजीत रोज़ी कैसे हासिल करता है, देवा कुमार? राजा एकदम संजीदा हो गया। इसने कनखियों से जीत और इसके साथियों की तरफ देखा। वो हमारी तरफ मतवज्जो न थे। फिर इसने मेरे करीब आकर सरगोशी में आहिस्तगी से कहा, यहाँ पर यह सवाल किसी से नहीं करना कि वो चेन्नई किस लिए आया है। यहाँ सभी तफरीह करने की गर्ज से आते हैं। किसी की आमद के बारे में सोचने से, फिक्र करने से सेहत मुतासिर हो सकती है। मुझे तुम्हारी इस बात से इत्तफाक है राजा, मैंने ममनूनियत से कहा। तुम्हारे इस दोस्ताना और मुखलिसाना मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मुझे इजाज़त दो देवा। उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और दूसरे हाथ से मेरी हाथ की पुश्त थपथपाई। तुम्हें देखा तो तुमसे मिलने चले आया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी कदर है। कोई काम हो तो मैं हाजिर हूँ। राजा मुखालिफ सिमत बढ़ गया। जबकि मैंने सरिता की तरफ देखा तो वो बहुत परेशान लगी। मैंने इसे दिलासा देते हुए पूछा, सरिता तुम किसी बात की फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी हर कीमत पर मदद करूंगा। लेकिन ये बताओ कि इसने तुम्हें कैसे फांस लिया? इसलिए कि तुम एक होशियार और समझदार लड़की हो, अच्छे बुरे की तमीज़ रखती हो। तुम्हारा इसके जाल में फंसना मेरे लिए ताज्जुब खेज है। तुम इसे मेरी बदकिस्मती समझ लो, मैं और क्या कहूँ। मैं खुद भी पछताती हूँ, लेकिन इससे क्या होता, वो अफसुर्दगी से बोली। सरिता ने मेरे इसरार पर जो कहानी सुनाई थी वो ये थी। मैं बम्बई में सांता क्रूज के काफ़ी हाउस में वेटरेस थी। सारनिया कॉफ़ी हाउस।
तुम इसके बारे में जानते होगे, वो बहुत मशहूर है। इसकी जैसी कॉफ़ी किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल और किसी कॉफ़ी हाउस में नहीं मिलती। सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक कॉफ़ी के शौकीन तांता अब भी वहाँ बंधा रहता है। वहाँ अक्सर फिल्मी सितारों के अलावा हर किस्म के लोग आते रहते हैं। राजा अजीत को पहली बार वहाँ ले आया था। राजा अक्सर आता रहता था। वो जिस मेज़ पर बैठा था, मैंने वहाँ कॉफ़ी सर्व की थी। मुझे अजीत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। दूसरे दिन जब मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने के लिए निकली तो अजीत अपनी शानदार गाड़ी लिए मौजूद था और मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे डिनर पर ले गया और अपने आप को बिजनेसमैन ज़ाहिर किया। फिर इसने सब्ज़ बाग दिखाकर मुझसे शादी कर ली। 10 दिन बाद हमारी शिमला से वापसी हुई। बम्बई से चेन्नई आई तो मुझे मालूम हुआ कि अजीत माफिया है। उसकी असलियत ज़ाहिर हुई जबकि इसने अपने गिरोह के आदमियों से मिलाया। इसी रोज़ मैंने अजीत को लान तान किया कि वो इसने जराइम पेशा होते हुए एक शरीफ लड़की से शादी क्यों की और मुझे फांसने की ज़रूरत क्या थी। पहले तो इसने मुझसे कहा कि कॉफ़ी हाउस या होटलों में जो वेटर्स होती हैं वो कौन सा सावित्री होती हैं। इस पर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। फिर इसने मुझे धनक कर रख दिया। इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने फ़रार होने की कोशिश की तो वो मुझे कत्ल कर देगा। इसी रोज़ से मेरी कड़ी निगरानी की जा रही है क्योंकि इसकी असलियत से मैं वाकिफ़ हो चुकी हूँ। सरिता ने अपनी बिपता सुनाने के बाद अजीत की सरगर्मियों के बारे में जो कुछ बताया था वो मेरे लिए अहम और मुफीद साबित हो सकता था। मैं जिस मुजरिम के ताक़ुब में यहाँ आया था और इसे किसी ने कत्ल कर दिया था, इसकी लाश 2 दिन कबल बरामद की गई थी। उसके सर में गोली मार दी गई थी। वो ना सिर्फ स्मगलर था बल्कि ब्लैकमेलर भी। वो अपने हलके में मोटा के नाम से मशहूर था। इसकी मौत ने मेरी मुहिम को मुश्किल बना दिया था। जिस वीआईपी ने मेरी खिदमत हासिल की थी वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसके पास मेरे मौक्कल की तस्वीरें थीं जो इसका सियासी कैरियर ख़त्म कर सकती थी। सरिता, मैंने इससे कहा, तुम्हारा मरदूद पति मुझसे बातें करते देखकर मुश्तिल हो रहा है। मैंने इसकी जो बेइज्जती की है इसकी तलाफ़ी यूँ हो सकती है कि मेरे 2 एक हाथ झड़के मुझे तालाब में धक्का दे दो। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करती हूँ। फिर इसने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ सीध की जिसकी बाज गश्त पटाखे की तरह दूर दूर तक सुनाई दी होगी। मेरी पुश्त तालाब की तरफ थी। मैं तालाब में जा गिरा। इस वक्त फिजा अजीत के साथियों के बेहंगम कहकहों से गूंजने लगी। औरत कितनी बड़ी अदाकारा होती है। सरिता की अदाकारी पर मैं आज शश कर उठा क्योंकि वो हंसी से दोहरी हो जा रही थी और अजीत के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने जाने में जल्दी नहीं की। थोड़ी देर बाद तालाब से बाहर आया। फिर मैंने होटल की तरफ जाते हुए अच्छी तरह से देखा और इत्मीनान कर लिया कि कोई मेरे ताक़ुब में तो नहीं। वो इसलिए कि कोई अगर आया तो इसका वालेहाना अंदाज से इस्तकबाल कर सकूं। मैं जिस होटल में क़याम पज़ीर था, ये तमिलनाडु का सबसे खूबसूरत होटल कहा जाए तो गलत ना होगा। बंदरगाह पर इसलिए ये होटल बनाया गया कि वो जगह हर लिहाज से मुनासिब और मौजूद थी। ये होटल चेन्नई की साहिली पहाड़ियों के बीचों बीच एक इंतहाई पुरफ़िज़ा मुकाम पर वाक़या है। होटल की बड़ी और पुरशिकवा इमारत के अलावा इससे मुल्हिका बहुत सारी कोठियाँ, कॉटेज और बंगले हैं जो फ़न तामीर का आला नमूना है। मैंने जो कमरा लिया हुआ था वो 103 नंबर था। मैंने नहाने के लिए जाते वक्त अपना कमरा गैर इरादी तौर पर मकफल नहीं किया था, शायद इसलिए कि मेरा सारा ध्यान किसी और जानिब था। मेरे कमरे की चाबी बोर्ड पर लटक रही थी। मैं इसे लिए बगैर लिफ्ट में सवार हुआ। एक गैर मुल्की सियाह जोड़ा लिफ्ट में मौजूद था। ये मियाँ बीवी ना थे और ना ही दोस्त और ना ही एक शहर के। सफ़र के दौरान हवाई जहाज़ में इनकी मुलाकात हुई। फिर मैं आकर बिस्तर में दराज हो गया। मैं बड़ी बदतमीज़ी से अपने केस के बारे में सोचने लगा। सारी कड़ियाँ एक एक करके जहन में चली आ रही थी। मेरे मौक्कल ने मुझे जिस मुहिम पर भेजा था उसे सर करने की सूरत में 10 लाख की रकम मिलने वाली थी। पेश की 2 लाख की रकम मिल चुकी थी। कोई और होता तो इतनी बड़ी रकम न देता। इज्जत का सवाल था। इज्जतदारों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। इलेक्शन भी बहुत करीब थे। अगर मैं इसके मुखालिफ उम्मीदवारों से सौदा करता तो मुझे 50 लाख तक देख सकता था, लेकिन मैं धोखेबाज ना था। मैं सोचते सोचते गहरी नींद की आगोश में चला गया। नींद में मैंने सरिता को देखा। गहरी नींद के बायस ना सिर्फ मेरी थकन दूर हो चुकी थी बल्कि मैं ताज़ा दम हो चुका था। घड़ी में वक्त देखा तो 7 बज चुके थे। मैंने बिस्तर से निकलकर लिबास निकाल कर पहना। चूँकि मेरे पास वक्त गुजारी के लिए कुछ ना था, मैंने टीवी ऑन किया। प्रोग्राम पसंद ना आया तो बेमकसद बाहर निकल आया। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।